سے انسان کے احسان کو یاد رکھے اور ضرورت پڑنے پر اس کے احسان کو اپنی زبان سے بولے. اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے بدلہ دینے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَادْعُوا لَهُ، اس کے حق میں دعا کرو، اسے دعا دو. کتنا دعا دو؟ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُ، اتنا دعائیں دو، اپنی دعاؤں میں اتنا یاد رکھو، تمہارے دل کو تسلی ملے کہ ہاں اس نے جو میرے کام آیا ہے، میں بدلہ تو نہیں دے سکا، کم سے کم دعائیں تو دے رہا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے. بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی 60ویں آیت تلاوت کی ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا
हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। यही आज के इस खुतबे का उन्वान है, लोगों के एहसान का बदला देना। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। दुनिया में जीने के लिए जहाँ अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला का सहारा ज़रूरी है, वहीं पर लोगों की मोहताज, लोगों की ज़रूरत का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक आदमी दूसरे आदमी के लिए दुनिया में काम आए, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन अता किया है वो दीन बहुत बेहतरीन दीन है। इस दीन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आए, ज़रूरत पड़ने पर आप अपनों के काम आए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ एहसान करे, यानी अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे और उसकी मदद करे। ये मुसलमान सोसाइटी में ये सोच होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर हर एक मुसलमान आपस में एक दूसरे की साथदारी देने वाला बने। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारों की मदद करते भी हैं, मदद लेते भी हैं। हम किसी के काम आते हैं, कोई हमारे भी काम आता है। लेकिन ये जो एहसान है, हम किसी पर एहसान करते हैं या कोई हमारे साथ एहसान करता है, अच्छा बर्ताव करता है, हमें साथ देता है, हमारी मदद करता है, तो ऐसे मौके पर इस्लाम ने एहसान कहा। एहसान किसे बोलते हैं? एहसान बोलते हैं किसी की मदद का अच्छा बदला देना। एहसान कुरान में और हदीस में कई मानों में आया है। आज के इस खुतबे के लिए जो एहसान की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो है लोगों की मदद का बदला देना। लोग आपको ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं तो उनके साथ एहसान करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना या उनका बदला देना, तो इसी को एहसान कहा गया। और यही बात आज आपके सामने रखना है। कुरान की जो आयत सूरह रहमान की आयत नंबर 60 मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ने इसमें फरमाया हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, कि एहसान का बदला एहसान ही होता है। एहसान का बदला एहसान ही होता है। यानी आपके साथ कोई अच्छा सलूक करे, आपके ऊपर एहसान करे, तो बदला क्या है? उसके साथ भी अच्छा सलूक करना, उसके साथ भी एहसान करना। उसके जब हमारी ज़रूरत पर कोई इंसान हमारे काम आया है तो एहसान ये है कि उसकी मजबूरी में हम उसका साथ दें, उसकी ज़रूरत पड़ने पर हम उसके साथ खड़े हों, ये एहसान है। और इस्लाम ने इसी की तालीम दी है। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, एहसान कई तरीक़े से हो सकता है। मैं आपको आसानी के साथ याद रखने के लिए एहसान के 3 तरीक़े आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कोई इंसान हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हम किस तरीक़े से उसका बदला दे सकते हैं। तो 3 तरीक़े हैं, 3 तरीक़े से हम बदला दे सकते हैं। या वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह से हमारे काम आए, हमारी मदद करे, ज़रूरत पड़ने पर साथ दिए, तो अगर आप उनका बदला चुकाना चाहते हैं, चाहना क्या बल्कि बदला देना है, समझ रहे? जो कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरीक़े से हमारे काम आया है, हमारी मदद किया है, हमारा साथ दिया है, तो ऐसे लोगों का बदला देना ये
अच्छे मुसलमान की पहचान है। अगर कोई इंसान ऐसा है कि किसी का एहसान ले और भूल जाए तो अच्छा इंसान नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, ज़रा फ़र्क है कि आदमी जो है इस एहसान को याद रख के क्या करे, तो ये 3 काम करना चाहिए। सबसे पहला, अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप उसका बदला दें। यानी उन्होंने जैसा आपके काम आया है आप भी वैसा ही काम आए। अगर सामने वाला पैसों से आपकी मदद किया है, अल्लाह आपको जब ताकत देगा आप भी पैसों से मदद करें। सामने वाला अगर अपनी बात, अपनी सिफारिश के ज़रिए से आपका साथ दिया है, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आता है कि आपकी बात कहीं चलने वाली है और आपकी बात से वो आदमी की साथदारी हो सकती है, आप अपनी बात रख के उसको साथ दें, लेकिन साथ दें। तो पहली चीज़, पहला तरीक़ा, सबसे पहला और सबसे बड़ा ये कि आप बदला दें। आप जिन लोगों ने आपको साथ दिया है, ज़रूरत पड़ने पर आप भी उनका बदला दें। ये इस्लाम ने हमको सिखाया है। पैगंबरों की ज़िंदगियाँ भी यही बताती हैं कि किसी की ज़रूरत का बदला देना चाहिए। सूरह क़सस आप पढ़ेंगे, सूरह क़सस में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले और मदियन पहुँचे और ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ, शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बकरियाँ नहीं चरा सकते हैं, बकरियों को पानी नहीं पिला सकते हैं, तो उनकी 2 बेटियाँ पानी पिलाने के लिए बकरियों को लेकर आईं। एक कुएं, एक बौड़ी के पास खड़ी हो गई, तो लोगों का इंतज़ार करते करते खड़ी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब देखे कि 1-2 मुसलमान लड़कियां बड़े पर्दे के साथ, एहतिमाम के साथ बहुत दूर खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं पानी पिला के जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं खड़ी हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या माजरा है। कहती हैं कि हम बकरियों को पानी पिलाने के लिए यहाँ आए हैं, मसला ये है कि लोग यानी मर्द आते हैं पानी पिला के लेके जाते हैं, तो हम अच्छा नहीं समझते कि उनके बीच में, उनके दरमियान में जाके हम भी बकरियों को पानी पिलाएं, इसलिए इंतज़ार करते हैं जब वो तमाम मर्द अपने अपने जानवरों को पानी पिला के लेके जाते हैं, तो तब हम आखिरी में जाके लेकर अपने जानवरों को पानी पिला के लाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बकरियों को मेरे हवाले करो, मैं पानी पिला करके लेकर आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, बकरियों को पानी पिलाया और लाके वापस कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां बकरियां लेकर वापस घर गईं। हर दिन जो वक्त पे आते थे उससे पहले आ गए। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज जल्दी आने की वजह क्या है। तो बेटियों ने जवाब दिया कि अब्बा जान, एक नौजवान, एक ताकतवर इंसान नजर आया जो आज हमारी मदद कर दिया, इसलिए आज हम जल्दी वापस आ गए। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम खुद बूढ़े थे, उम्र वाले थे, नहीं जा सकते थे, अपनी एक बेटी को भेजा कि जाओ जाकर बुलाकर लेकर आओ। बेटी गई और जाकर बुलाकर ले आने के लिए जो बात करती हैं, कुरान ने एक आयत में उसको कैसे बयान किया। सूरह क़सस आयत नंबर 25 में अल्लाह ने फरमाया, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदऊका। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं और कहती हैं इन्ना अबी यदऊका, कि हमारे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं, घर को बुलाए हैं। क्यों बुलाए हैं, ये जुमला सुनिए। कहती हैं लियज्जियका अज्र मा सखैत लना, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे काम आया है, तो हमारे अब्बा चाहते हैं कि आपकी इस मेहनत, आपकी इस ज़रूरत पड़ने पर काम जो आए उसका बदला मेरे अब्बू देना चाह रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं। और फिर लेकर गए और वाक़या उसके बाद अलग वाक़या है, वाक़ये में नहीं जाना है। बताना यह है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जगह और फिर बेटियों की तरबियत ऐसी की कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी में
کام آتا ہے تو پہلی صورت کیا ہے؟ ہم بھی اس کے کام آئیں، اس کا بدلہ دیں، اس کا اجر دیں، اس کو اس کی ضرورت پڑنے پر اس کا بھی ساتھ دیں. یہ پیغمبروں کی زندگیاں سکھاتی ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو کوئی بھی، مطلب چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، یا کوئی انجان آدمی بھی ہو، کسی بھی جگہ آپ کو ساتھ دیا ہے اپنے پیسوں سے، اپنے وقت سے، اپنی بات سے، تو ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، اس کو بھی اچھا بدلہ دے کسی بھی طریقے سے. اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، دولت سے دیں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، وقت سے دیں. اگر مصیبت میں وہ آپ کا ساتھ رہے ہیں 2-4 دن ہاسپٹل میں، تو آپ بھی یہ کوشش کریں، کبھی وہ بیمار پڑے، ان کو ضرورت پڑے، آپ بھی 1-2-4 دن ان کے ساتھ رہیں، بدلہ دیں. یہ بہتر طریقہ ہے. یہ پہلا طریقہ ہے جو رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے انسان کے احسان کو یاد رکھیں اور ضرورت پڑنے پر اس کے احسان کو اپنی زبان سے بولیں. سمجھ رہے؟ ایک تو ہے کہ آپ احسان کا بدلہ دیں. دوسرا کیا ہے؟ احسان کا بدلہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم سے کم کیا ہے؟ اس کے احسان کو یاد رکھیں اور اپنی زبان سے اس کے لیے تعریف کے جملے کہیں. تعریف کے جملے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں اس کے سامنے تعریف کریں، اس کو چڑھائیں آسمان پہ. نہیں، یہ تعریف نہیں ہے. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ غائبانہ طور پر اس کا اچھا ذکر کریں. مثال کے طور پر آپ کے کسی رشتہ دار دوست نے آپ کو بہت ساتھ دیا ہے زندگی میں. اب آپ ایک 5-10 لوگوں کے بیچ میں ہیں اور کبھی اس کا نام آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، تو آپ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ ہاں فلاں آدمی نے، فلاں بھائی نے مجھے میری ضرورت میں ساتھ دیا ہے، میرے کام آیا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے میری مدد کی ہے. تو یہ اپنی زبان سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ فلاں انسان نے میرے کام آیا ہے. دیکھیے، احسان کا بدلہ احسان سے دینا یہ پہلی بات ہے. اگر احسان کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے، ہر انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا اچھا ذکر کرے، ہے کہ نہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ ان کا ذکر اچھے الفاظ سے کرنا تو دور کی بات، الٹا پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں، سامنے تعریف کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں میرے بھائی، اسے چھوڑیے. سامنے چڑھانا نہیں ہے، سامنے بسکٹ نہیں ڈالنا ہے، پیٹھ پیچھے تعریف کریں. اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان آپ کو کسی بھی طریقے سے کام آیا ہے، آپ کی زندگی میں مدد کیا ہے، ضرورت پڑنے پہ ساتھ دیا ہے، تو لوگوں کے سامنے وہ ہے موجود، تو اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ پیٹھ پیچھے جہاں وہ نہیں ہے، جہاں لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، ویسی جگہ پر اس کا اچھا ذکر کرنا، اس کے بارے میں تعریفی جملے بولنا. یہ اسلام کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے کہ ہم ایسے انسانوں کے احسان کو یاد رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ان کا اچھا ذکر کریں. آج ہمارے اندر یہ عادت کی کمی ہے کہ ہم احسان کو یاد نہیں رکھتے. ہمارا مسئلہ کیا الٹا ہے. ہماری عادت کیا پڑ گئی ہے؟ ہمیں کسی کو 1000 روپے بھی دیے تو ہم 10 جگہ بول لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان 1000 روپے دے کے ہماری مدد کرا ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہم کبھی منہ نہیں کھولتے ہیں. کم سے کم اتنا بھی نہیں بولتے کہ ہاں وہ بندہ مجھے کام آیا ہے، میرا ساتھ دیا، یہ بھی نہیں بولتے. بھائی، ایک اچھے انسان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے، اپنا جو احسان ہے وہ بھول جاتا ہے، دوسروں کے احسان کو یاد رکھتا ہے. سمجھے آپ؟ اپنا جو احسان ہے وہ بھول جاتا ہے، دوسروں کا جو احسان ہے وہ یاد رکھتا ہے. مطلب میں آپ کے کام آیا، میں بھول جانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ، میں آپ کے کام آیا ہوں، آپ کی مدد کیا ہوں. کیوں؟ اللہ اجر دینے والا ہے. بھول جانا ہے، اسے دیکھ کے یاد نہیں کرنا ہے، وہ احسان کو یاد نہیں دلانا ہے، احسان جتانا نہیں ہے. ہاں، اگر دوسروں کا احسان میرے اوپر ہے تو میں اسے یاد رکھنا ہے کہ ہاں فلاں انسان میرے کام آیا ہے، اللہ طاقت دے گا تو میں بھی کام آؤں گا. یہ اچھے انسان کی صفت ہے. آج ہم الٹے ہیں، دوسروں کے احسان بھول جاتے ہیں، اپنا احسان یاد رکھتے ہیں.
हमें जो काम आए वो याद रखना क्या है, बोल लेते फिरते हैं, मैं साथ दिया उसे, मेरी वजह से उतने दर्जे पे है सोनो। ये अच्छे इंसान की आदत नहीं है। तो अच्छा इंसान वो होता है जो एहसान का बदला या तो एहसान से देता है, दूसरा तरीका ये कि एहसान का बदला उस आदमी के एहसान को याद रखकर उसके बारे में अपने दिल से गायबाना तारीफ करता है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा और ज़रूरी काम ऐसे लोगों के बारे में जो करना है वो ये कि जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह से हमारे काम आए हैं, हमारा साथ दिए हैं किसी भी तरीके से, तो हम उन्हें दुआएं देना है। क्या देना है? दुआएं देना है। कोई भी इंसान हमारे जो भी काम आया है दुआएं देना है। दुआएं देने का ये मतलब नहीं कि आप सामने एक मर्तबा दुआ दे के छोड़ दें, नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुआओं में उनका भी ख्याल रखना है। मेरे भाई, इस जगह पे रुक के आप थोड़ा समझिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारों के एहसान हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारों के एहसान के तले दबे हुए हैं। सबसे बड़ा तो एहसान अल्लाह का है। अल्लाह के बाद हमारे अपने माँ बाप का एहसान हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है। माँ बाप के बाद रिश्तेदारों का, दोस्तों का, या हमारे साथ देने वालों का। आपको मालूम है अल्लाह के बाद ये जो माँ बाप का एहसान हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, ये एहसान को याद रखने के लिए अल्लाह ने आपको दुआ सिखाई है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार आप जब भी दुआ करें, ये दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे जैसे रहम व करम से पाला है, मुझ पर जैसी मेहरबानियां की हैं, ऐ अल्लाह तू भी उन पे वैसा है रहम फरमा। ये दुआ एक दो मरतबा नहीं, जिंदगी भर करने की दुआ है। माँ बाप का उतना बड़ा एहसान है। तो गोया अल्लाह ने आपको ये सिखाया कि माँ बाप का एहसान कभी नहीं भूलना है। उनके एहसान के लिए आप जिंदगी भर अपनी हर दुआ में उनको याद रखना है। ठीक ऐसे ही जो लोग हमारी जिंदगी में काम आते ना, तो उनके बारे में दुआएं देना, उनके हक में दुआ करना और अपनी दुआओं का थोड़ा हिस्सा उनकी भलाई, उनकी खैर व बरकत के लिए दुआ करना चाहिए। ये एक ऐसी सुन्नत है जो आज हम भुला दिए हैं। साथ देने वाले, काम आने वालों को दुआएं देना। हम दुआएं नहीं देते भाई, हम दुआएं देने में बहुत कंजूस हैं। कोई इंसान आपके काम आया, दुआ दो। क्या दुआ? सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई मुसलमानों को। कैसी प्यारी दुआ, एक हदीस सुनाता हूँ, सुनिए और याद रखिए, आदत डालिए अमल करने की। इमाम तिरमिजी और इमाम नसाई दोनों ने इस हदीस को अपनी किताब में रिवायत किया है। इमाम तिरमिजी ने हदीस नंबर 2005 में अपनी किताब में यह हदीस बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सुनिया इलैहि मारूफ, आपके साथ कोई इंसान भलाई किया, आपके काम आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कि आप उसे कहें दुआ देते हुए, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बोले? जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या माना है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे। कैसा? खैरन, बेहतरीन बदला दे। आप जो मुझे मेरे काम आए, मेरा साथ दिए, मैं इसका बदला नहीं दे सकता, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, अल्लाह आपको इससे बेहतरीन चीज से नवाजे। ये दुआ देने को कहा गया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। सच बोलिए, हमारी जिंदगी में कभी ये जुमला हमारी जबान से निकला है? मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मुझे साथ देने वालों के लिए? नहीं, हमारी जबानों से दुआएं निकलती ही नहीं। मुश्किल से एक दो जुमले निकलते हैं जो जुमले बोलना ही नहीं चाहिए। थैंक यू क्या है? क्या माना है? किसने सिखाया आपको? उसका क्या माना है? आप क्या दुआ दे रहे हैं? भाई, इस्लाम की जो दुआएं हैं, इस्लाम का जो तरीका है, वो किसी में नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा, ये माना न थैंक यू में है, न शुक्रिया में है, न फुला में, न फुला में। वो उर्दू में लोग बोल लेते हैं, नहीं, असल चीज है जज़ाकल्लाहु खैरा। आप जज़ाकल्लाहु खैरा, आसान सा जुमला है, याद रखें। हाँ, सामने वाला अरबी नहीं समझ रहा, आप उर्दू में बोले कि अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। क्या है? नहीं बोल सकते आप? कितनी जगह, कितने लोग हमारी जिंदगी में काम आए। और हमारी आदत क्या है?
अजनबी पराए इंसान को दुआएं देते, अपनों को दुआ नहीं देते। कोई बाहर का इंसान हमारे काम आया तो दुआएं देते हैं, मेरा अपना भाई अगर मेरे काम आया मुंह भी नहीं खुलता है, एक जुमला भी नहीं निकलता है कि भाई मेरे भाई मुझे आप साथ दिए, आपका एहसान रहेगा मेरे ऊपर, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, मेरे में ताकत नहीं है आपको बदला देने की। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कैसी शर्म, क्या शर्म है भाई। आपकी ज़िंदगी में आपके अपने माँ बाप कितने काम नहीं आते हैं, आपके औलाद आपके भाई कितने काम नहीं आते हैं, आपकी बीवी बच्चे कितने काम नहीं, कभी बोले, कभी ज़बान से निकला है। आपके माँ बाप आपके लिए तकलीफ पड़े, आपके वालिद तकलीफ पड़े, अब्बा आप मेरे लिए बहुत तकलीफ पड़े, ये चीज़ ला के दिए, मेरे लिए घर का इंतजाम, कुछ भी हो, अल्लाह अब्बा जान आपको अल्लाह बेहतरीन बदला दे। एक मरतबा तो भी बीवी आपके लिए मेहनत करती है, पकाती है, तकलीफें पड़ती है, बहुत कुछ करती है, हाँ आपके लिए अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे, नहीं। आपके भाई आपकी बहनें ख़ानदान का कोई भी आदमी काम आए दुआएं देना है, नहीं। दुआएं देने में कंजूस बखील वाक़े हुए हैं। एक तो सबसे बढ़ के क्या है, बदला देना है, बदला नहीं देते, बदला देने की ताकत भी नहीं होगी शायद, लेकिन कम से कम ज़बान से दुआएं तो दे सकते। सहाबा कराम सुभान अल्लाह, जब कभी सहाबा के साथ ऐसा मसला आता, कोई मदद करते, कोई साथ देते, याद रखते उनको, नबी से जाके बार बार पूछते। एक हदीस आप जाके पढ़िए जी, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4812 हदीस नंबर है। मुहाजिर जो सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीना आए, मदीने में आने के बाद मदीने में जो अंसारी सहाबा थे बहुत साथ दिए मक्के वाले सहाबा का, तो मक्के वाले सहाबा के दिल में बार बार ये चीज़ खटकती थी, उन्होंने हमारा साथ दिए, हम रहने के लिए घर दिए, घर में जगह दिए, खाने के लिए बर्तन पेश करे, इतना सब कुछ साथ करे, इतना अजर वो ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह के नबी के पास चले गए, जाके बोले ज़हबतिल अंसारु बिल उजूरी कुल्ली, बोले कि ए अल्लाह के रसूल, अंसारी सहाबा पूरा अजर सवाब लूट लिए, हमारी मदद करे, हमारा साथ दिए, हमें खिलाए, मुसीबत में काम आए, सब कुछ करे, अब हम क्या कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दअउतुकुमुल्लाह लहुम, तुम्हारे लिए अब भी मौका है कि तुम उनके हक में दुआ दे करके नेकियां कमा सकते हो, उनके एहसान का बदला चुका सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर सहाबा को कहा कि अंसारी साहब मदीने वाले सहाबा ने आपकी मदद की है, अच्छी बात है, दुआ करो उनके लिए। और खुद सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी जब अंसारी सहाबा सामने होते और मुहाजिर सहाबा का एहसान याद आता तो अल्लाह के नबी बोलते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते व अंतुम माशरल अंसार फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा, ए मदीने के अंसारी सहाबा अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे। उनके नाम के साथ अल्लाह के नबी बोलते फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ ज़रा हमको सीखना है, आदत डालना है दुआओं की। आपको थोड़ा भी कोई काम आया दुआ दें, जज़ाकल्लाह खैर। भाई सऊदीया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, हमारी जहन कीड़े निकालने की है, हम कीड़े निकालने की आदत पड़ गई है। अच्छी चीज़ें लें, जो चीज़ें गुनाह की हैं, बुराइयां हैं, छोड़ दें, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो लें, जो अच्छे काम हैं वो तो सीखें। आज भी आप देखें ज़बान बात बात पे दुआएं देते हैं, ज़बान खुली दुआएं देते हैं, कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा साथ दिए। मस्जिद में कोई बुजुर्ग इंसान आया, कोई नौजवान जाके कुर्सी ला के रखा, दुआएं देते हैं, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, हय्याकल्लाह, अल्लाह तुझे अच्छी ज़िंदगी दे, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बरकत। कितनी दुआएं, क्या काम, बस हल्का सा काम करे तो इतनी दुआएं बात बात पे दुआएं देती हैं। हमारे पास ये माहौल ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे तो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातों पे भी दुआएं नहीं है, दुआएं नहीं, हमारी ज़बान से कभी दुआएं निकलती। आप बोले कि क्या मुश्किल काम है, जज़ाकल्लाह क्या आप नहीं बोल सकते, बारकल्लाह आप नहीं बोल सकते, हय्याकल्लाह आपने कम उर्दू में तो बोले, अल्लाह अल्लाह तुझे बेहतरीन बदला दे। भाई इसमें शर्माना नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह लोगों के वास्ते आपकी ज़ात नमूना थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस पे अमल करके दिखाए। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्ला बिन रबीआ,
ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، بہت ساتھ دیے۔ یہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اس روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مدد کرنے کے لیے ان سے 30 یا 40 ہزار کا قرضہ لیا اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، قرضہ لیے اللہ کے نبی۔ جب واپس کرنے کی باری آئی اللہ کے نبی وقت پر ادا کیے، وہ 30 یا 40 ہزار، روایت میں دو بھی ہیں، 30 یا 40 ہزار اللہ کے نبی لیے تھے، درہم تھے دینار تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب واپس کرے ان کا قرض، اللہ کے نبی قرض واپس کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا دی، بولے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، بھائی تو نے میری زندگی میں میرے کام آیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تیرے گھر بار میں، تیری مال و دولت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دعائیں دیے، نہ صرف یہ کہ دعائیں دیے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ بھی بولا، کیا بولا معلوم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما جزاء السلف الوفاء والحمد، قرض دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے الوفا، کہ آپ نے جتنا قرض لیا ہے اتنا پورے کا پورا واپس کریں، یہ پہلا ہے، پہلا پورا قرض واپس کر دیں، اس کے بعد آپ اس کے حق میں دعا کریں، اسے دعائیں دیں، خالی دعائیں نہیں دینا ہے، پیسے پہلے پورے دینا ہے، اس کے بعد دعائیں دینا ہے، تو پھر خالی دعائیں دے کے آ جائیں گے واپس نہیں، پہلے قرض واپس کرنا ہے پورا، اس کے ساتھ دعائیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے گھر بار میں، تیرے مال و دولت میں برکت عطا کرے۔ ہلکا سا قرض، ہمارے پاس تو بولش نہ کو قرض کے بارے میں اتنا بگاڑ آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں بولنا ہے قرض کے بارے میں، ویسی حالت ہے، ایک تو دیتے نہیں، دینے میں ستاتے ہیں، واپس کرنے کے بعد دشمنیاں، اتنا ستاتے ہیں کہ قرض دینے والا انسان پھر کبھی اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اتنا ستاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف وقت پہ ادا کرے بلکہ پورا ادا کرے، ساتھ میں اللہ کے نبی دعائیں بھی دی۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی سنت ہے، کتنی پیاری سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ پھر ایک بار بولتا ہوں، یاد رکھیں، جو انسان ہماری زندگی میں کام آتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پہلا کام یہ کہ ضرورت پڑنے پر آپ بدلہ واپس کریں، یعنی ان کو بدلہ دیں۔ آپ نے پیسہ لیا ہے، پیسوں کے ذریعے سے بدلہ واپس لوٹائیں۔ دوسرا کام یہ کہ ان کے احسان کو یاد رکھیں، لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں اچھا ذکر کریں۔ تیسرا بات یہ کہ یہ 2 کام آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام احمد، تینوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ حدیث سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا الیکم معروفا، جو انسان تمہارے ساتھ بھلا کرے، تمہارے کام آئے، کچھ بھی بھلائی کرے، فکافئو، تم اس کا بدلہ واپس کرو، یعنی کوشش کرو کہ تم اس کو بدلہ واپس دو۔ یعنی اگر اس نے پیسے دیے ہیں پیسے دو، وقت دیا ہے وقت دو، تمہارے گھر بار رشتے کے بارے میں کام آیا ہے اس کے بھی کام آؤ، تمہارے بچیوں کے نکاح میں کام آیا ہے اس کے کام آؤ، تمہیں علم سکھایا ہے تم بھی چاہو تو وہ کام کرو، بدلہ دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے بدلہ دینے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَادْعُوا لَهُ، اس کے حق میں دعا کرو، اسے دعا دو۔ کتنا دعا دو؟ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُ، اتنا دعائیں دو، اپنی دعاؤں میں اتنا یاد رکھو، تمہارے دل کو تسلی ملے کہ ہاں اس نے جو میرے کام آیا ہے، میں بدلہ تو نہیں دے سکا، کم سے کم دعائیں تو دے رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈھونڈیے ایسے انسانوں کو جنہوں نے آپ کے کام آیا ہے، آپ کو ساتھ دیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، اور اس وقت نہ صحیح اس وقت صحیح آپ ویسے لوگوں کا بدلہ دیں، ان کا ذکر اچھے الفاظ سے کریں، یا اگر وہ زندہ نہیں ہیں یا زندہ بھی ہوں کم سے کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ کام سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر احسان ہمارا نہیں ہے، اتنا بڑا احسان۔ اور اس کے ساتھ جو انسان تھوڑے بھی، چاہے وہ عمر میں ہم سے بڑے ہوں، عمر میں ہم سے چھوٹے ہوں، بھائیو تھوڑا عادت ڈالیے دعائیں دینے کی، زبان سے کھولیے منہ کھول کے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی تجارت میں ترقی عطا، دعائیں دینے والے بنے،
मुंह खोलें दुआएं देने के लिए। ये दुआएं देने का मतलब वही दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह ने सिखाई। ये छोड़िए थैंक यू उनको फुला 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 सब छोड़िए। ये ना इसका कुछ माना है, ना इससे सामने वाले को कुछ फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह बोलें, आपको भी अजर व सवाब मिलेगा, सामने वाले को भी अल्लाह बदला अता करेगा। ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में जो लोग थोड़ा भी हमारे काम आते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, अच्छे मुसलमान होने की पहचान ये है। वैसे इंसानों के एहसान को याद रखें, उनकी साथदारी को याद रखें। आप बदला ना दे सकते हो सही, लेकिन अपनी दुआओं के ज़रिए से अपनी हर दुआओं में उनको हिस्सेदार बनाएं। दुआएं बहुत बेहतरीन बदला है। दुआएं देने वाले बनिए, दुआएं लेने वाले बनिए, दुआएं सीखने वाले बनिए, दुआएं सिखाने वाले बनिए, लोगों के दरमियान दुआओं से खुश करने वाले बनिए। आपकी एक दुआ से, आपकी एक हिम्मत से सामने वाले को कितनी खुशी होती है कि भाई मैं साथ दिया तो मुझे दुआएं दिया। इंसान को याद रह जाता है। आज हालत क्या है मालूम, कितना भी मदद कर लो साइलेंट, कुछ भी नहीं, जबान से कुछ भी नहीं निकलता है। नहीं भाई, आप बोलिए, अपने घर से आदत डालिए, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से इसकी शुरुआत कीजिए कि हमारी ज़बानों पे दुआएं होना है। ये गालियाँ, ये बकवास, ये बेकार की बातें, ये अपना एहसान जताने की बातें छोड़िए। हमारे एहसानों को भूल जाइए, दूसरों के एहसानों को याद रखिए और उसके बदले में दुआएं देना सीखिए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हर एक के साथ, खुसूसन अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपनों के साथ एहसान करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी के काम आया है, ऐ अल्लाह हम तुझसे बदला चाहते हैं, एहसान नहीं जताना चाहते। ऐ अल्लाह हमें एहसान जताने से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जिन जिन इंसानों ने जिस किसी को काम आया है साथ दिया, ऐ अल्लाह ऐसे इंसानों के एहसान को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, ताकत मिलने पर उन्हें उनका बदला देने की तौफीक अता फरमाए, या ना उनका अच्छा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, या ना उन्हें अपनी दुआओं में याद रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में जो इंसान हमारे काम आते हैं, ज़बानें मुंह खोल करके उन्हें दुआएं देने की तौफीक हमें अता फरमाए। ऐ अल्लाह, दूसरों के एहसानों को याद रखे, अपनी दुआओं का कुछ हिस्सा उनके लिए निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।